My friend Gorish was the topper of my school. He always used to get the best possible grades. He was a topper from class 1. वो पूरे साल मेहनत करता था. जब हम खेलते थे, he studied, revised, prepared notes, solved questions, model test paper, sample paper, PYQs and did each and everything he could. He was the most disciplined, obedient and sincere of us all. He followed all the rules. Gorish सभी teachers का favorite था. He was praised. उसकी तारीफ होती थी. Everybody believed in him. The teachers could bet their lives on him. He was destined to be successful. So he studied even harder. He topped class 10 boards, then took science and again topped class 12 too. He got into the best college, a college we could only dream of. वो college में भी topper रहता था and the professors loved him. He sat for the placement and got the best package of us all. He earned lakhs, spent lakhs, got married. He was the most happy of us all. The best ideal life we could only dream of. He had everything. Topper सुनते यही आता है ना दिमाग में. But the reality is a bit different. Or maybe completely different. We have started to realize it कि school success और career success दोनों अलग-अलग चीजें हैं. But I am here to say the contrary. Toppers often fail at life than average students do. आराम से पॉपकॉर्न लेकर बैठो बिकॉज ये वीडियो एक जर्नी होगी. देयर विल बी रेफरेंसेस फ्रॉम साइकोलॉजी, फेमस पीपल, माय ओन ऑब्जर्वेशंस एंड अ लॉट मोर. ओए, हाँ, आई एम आस्किंग यू, आर यू सक्सेसफुल? सक्सेस इज वॉट यू परसीव इट टू बी. अगर मेरे लिए चल पाना इज सक्सेस, देन आई हैव गॉट सक्सेस. अगर मेरे लिए 1 करोड़ इज सक्सेस, देन आई स्टिल हैव नॉट गॉट सक्सेस. अंडरस्टैंड दिस. आई कैन बी अ सक्सेस एट फ्यू थिंग्स एंड फेल एट अदर्स एट द सेम टाइम. अगर मैं क्रिकेट मैच को 10 बार हारता हूँ, आई एम अ सक्सेसफुल लूजर. आई लूज सक्सेसफुली. सो द आर्ग्यूमेंट इज दिस. For you, 1 crore rupees may be a success, but in my definition of success, I may not even include money at all. So question को थोड़ा और specific करते हैं. Why do toppers stay average in life? Average in terms of money, fame and contributions to the society. They were the toppers और हम उनसे expect करते हैं कि they become the leaders. वो हमारे country को lead करें, which more than often they don't. That's why the title, Why Toppers Fail in Life. Because they fail to contribute to the society. They fail to generate jobs. They do not become the leaders. They fail. साइकोलॉजी की फील्ड में टर्मन स्टडी ऑफ द गिफ्टेड अभी सबसे पुरानी और सबसे लंबी चलने वाली लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है. टर्मन वांटेड टू नो अबाउट गिफ्टेड चिल्ड्रन, उनका डेवलपमेंट, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं. ही सेलेक्टेड ओवर 1528 स्टूडेंट्स जिनका की IQ एटलीस्ट 135 था. अब जैसा टर्मन ने सोचा था, ये स्टूडेंट्स वर सोशल, इनकी हाइट काफी अच्छी थी एंड इवन ये स्टूडेंट्स का ग्रुप पढ़ाई में भी सबसे आगे था. इनमें से करीब 50%
50% लोगों ने कॉलेज भी कंप्लीट किया, जबकि उस टाइम का एवरेज सिर्फ 8% था। मतलब उस टाइम नॉर्मल पॉपुलेशन में सिर्फ 100 में से 8 लोग ही कॉलेज पूरा कर लेते थे, पर इन गिफ्टेड बच्चों के ग्रुप में आधे से ज्यादा बच्चों ने कॉलेज कंप्लीट किया। So the point is, these were one of the best minds of America at that time. ये स्कूल में नंबर 1 थे, ये इवन कॉलेज में भी नंबर 1 थे। But by the 4th volume of Genetic Studies of Genius, Lewis Terman concluded, at any rate, we have seen that intellect and achievement are far from perfectly correlated. मतलब इंटेलिजेंट होना और कुछ अचीव करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, इन जीनियस बच्चों ने काफी कुछ अचीव किया। जेस ओपेनहाइमर wrote a book. Lee became the president of American Psychological Association and over 50 men became college and faculty members. हाँ, काफी लोगों ने एक certain level तक अचीव किया, but they were chosen as the best students across America. इनको बाकी लोगों को लीड करना चाहिए था। They should have been the leaders. क्योंकि इन सभी का इंटेलेक्ट सबसे ज्यादा था, तो इनको अपनी कैपेसिटी को कैपेबिलिटी में टर्न करने की जरूरत थी। उल्टा मोस्टली लोगों की जॉब बोरिंग और रेपिटेटिव थी। इवन सम ऑफ देम वर्कड एज पुलिसमैन, सीमैन, टाइपिस्ट एंड क्लर्क। विद नो डिसरिस्पेक्ट टू दीज जॉब्स, इनमें द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड इज कंपैरेटिवली लेस। सो ऐसा क्या हुआ? इवन दो दे वर द बेस्ट, इतने हाईली इंटेलिजेंट होने के बाद भी क्यों ये लोग टॉप तक नहीं पहुंच पाए? ऐसा क्यों था कि दे वर डूइंग ओनली एवरेज इन लाइफ, जबकि दे वर मेंट टू बी द बेस्ट? आई स्टिल रिमेंबर कैसे इन स्कूल जो फिजिक्स के यूनिवर्स के लॉज होते थे, हमें ऐसे पढ़ाया जाता था जैसे कि यही अल्टीमेट ट्रूथ हो। अगर हम कोई क्वेश्चन भी करते थे तो दे वर लाइक, ये लॉ ऐसी थोड़ी बना दिया है, जबकि इवेंचुअली मोस्ट ऑफ दीज लॉज आर प्रूव्ड रॉन्ग और एक नया लॉ आ जाता है। और अगर हम इन लॉज को क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तो नए लॉज कहाँ से आएंगे? बिकॉज ऑफ दिस, जो स्कूल टीचर्स की ज्यादा सुनने लगता है, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी श्रिंक होती जाती है। They no longer can think anything out of the box. तो what happens is they can be highly skilled but not creative. इससे आपको एक बहुत अच्छी जॉब तो मिल सकती है, but that's it. Why? Because they have learned to conform to anything, right or wrong, doesn't matter. अच्छा, during my research मैं कुछ articles पढ़ रहा था, तो I came through some of them where it was like कि they want us to put up our hands and wait to be chosen and so on. Although मैं समझता हूँ कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बट इट्स अ बेसिक कर्टेसी टू रेज योर हैंड एंड आस्क फॉर परमिशंस। अब 40 बच्चे लेक्चर के बीच में नहीं बोल सकते ना, हंगामा हो जाएगा। अगेन, टॉपर्स में सोशल स्किल्स कंपैरेटिवली कम होती हैं। क्यों? क्योंकि द इंटरेक्शन विद अदर स्टूडेंट्स इज क्वाइट लो। इसके अलावा मैं एक बार जॉब के लिए, मैं बस एक ही बार इंटरव्यू के लिए गया था अपने एक दोस्त के साथ में, वो भी मज़े में। वो जा रहा था तो मैंने कहा चल यार मैं भी चलता हूँ। एक दिल्ली गुड़गांव रोड के ऊपर एक रेडिसन होटल है, वहाँ पर उस टाइम पे कुछ कॉल सेंटर्स के लिए इंटरव्यूज़ चल रहे थे। उस टाइम पे नया नया ये BPO कॉल सेंटर्स ये नया नया शुरू हुआ था, अराउंड 20-21 ईयर्स बैक। तो मैं गया, वहाँ पे 5-6 राउंड थे और मैं शायद तीसरे राउंड तक पहुँचा था, फिर बाहर हो गया। व्हाटएवर, आई एम सो ग्लैड कि नहीं हुआ मेरा, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर रहा होता। क्योंकि क्या होता है कि एक बार आदमी अगर कंफर्ट जोन में चला जाए, कि एक बार अगर मेरे को लत लग जाती एक 18-19 साल के लड़के को, क्योंकि बाकी मैंने अपने दोस्तों के साथ में होते हुए देखा है कि एक बार वहां से पैसा आने लग जाता है 10-15 हज़ार रुपए, तो फिर वहां से निकलना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि एक रूटीन बन जाता है।
Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये लाइंस हम सब ने पढ़ी हैं और स्कूल में ही पढ़ी हैं। आई स्टिल रिमेम्बर ये हमारे क्लास 9 के सिलेबस में थी, बट इट्स क्वाइट आयरॉनिक कि ये हमने स्कूल में पढ़ी हैं, एक ऐसी जगह जहां हमें सिखाया ही ये जाता है कि चूज द रोड मोर टेकन। द बिगेस्ट प्रॉब्लम अ टॉपर फेसेस इज हाई रिस्क अवर्जन। एक बच्चा जब बचपन से सिर्फ क्लासेस टॉप करता है, उसकी रियलिटी ऑल्टर हो जाती है। उस बच्चे की रियलिटी में ही कांट अफोर्ड टू फेल, मतलब फेलियर इज लाइक एन इम्पॉसिबिलिटी फॉर हिम। उसको डर लगने लगता है कि मैं कहीं एक स्टेप नीचे तो नहीं चला जाऊंगा। अगर वो फर्स्ट आता है तो उसको हमेशा ये कॉन्स्टेंट फियर रहेगा कि कहीं वो सेकंड ना आ जाए। बिकॉज ऑफ दिस वो रिस्क लेने छोड़ देता है। वैसे तो इवन एग्जाम्स लाइक जेई, नीट एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम्स हैव देयर ओन रिस्क। तुम 12 साल मेहनत कर लो, बट अगर एग्जाम डे में कुछ गड़बड़ हुआ, यू कैन नॉट डू अ थिंग। सिलेक्शन परसेंटेज भी बहुत कम होता है, इट्स वेरी लो, बट सोसाइटी का एक पर्सपेक्टिव है कि दे आर रिस्क फ्री बिकॉज यू हैव द ऑप्शन टू वर्क हार्ड। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ मतलब तुमने हार्ड वर्क नहीं किया है, बट वो भूल जाते हैं इट्स नॉट अबाउट एब्सोल्यूट वर्क बट रिलेटिव वर्क। टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, मान लो दिन में 12 घंटे काम करना इज हार्ड वर्क, बट अगर कोई 13 घंटे काम कर लेता है देन उसको पहले जॉब मिलेगी, एंड दिस इज कॉल्ड रिलेटिव हार्ड वर्क। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता तुमने कितना काम करा, फर्क पड़ता है कि तुमने दूसरों के कंपैरिजन में कितना काम करा। सो नाउ लेट्स सी द बिगर पिक्चर। एट द एज से 18 और 20, जब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, यू चूज अ सेफ ऑप्शन। उसके बाद तुम एक सेफ जॉब चुनते हो, और इसीलिए इतने बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर एंड गवर्नमेंट जॉब का ट्राई करते हैं। बिकॉज द प्रॉब्लम इज इंडिया में इंटेलेक्ट की कमी नहीं है, द प्रॉब्लम इज पीपल्स बिहेवियर टू स्टे रिस्क फ्री। 2 points to note. If you consciously choose to pursue any conventional career, मतलब तुम अपने मन से वो करियर चूज करते हो क्योंकि तुम करना ही वो चाहते हो, then fantastic, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। B, it's also not a bad thing to dream of a safe job. सेफ्टी और सिक्योरिटी सबको चाहिए, इवन मुझे भी, बट अगर तुम सेफ्टी के पीछे 18 जैसी एज में पागल हो जाते हो देन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। इससे एक ऐसी सोसाइटी बन जाती है जहां बस सेफ जॉब चाहिए, नो वन एस्पायर्स टू क्रिएट। अगर 50 लोग हैं और उनको जॉब चाहिए तो उन 50 में से 5 लोग जॉब क्रिएट करने वाले भी तो होने चाहिए ना। The problem is you only want to walk on a conventional path, a road more taken. कॉन्शियसली करो तो सही है, बट यू जस्ट डू इट बिकॉज बचपन से तुम टॉपर हो और तुम कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हो, बिकॉज आज तक तुम्हें सिर्फ तारीफ मिली है, और अगर तुम कोई रिस्क लेते हो तो लोग क्या कहेंगे। बट वॉट इट डज इज कि यू लर्न टू प्ले ओनली सेफ। यू डोंट इवन नो वॉट फेलियर इज, वॉट इट लुक्स लाइक। अगर फेलियर आते हैं तो हाउ टू डील विद देम, यू आर क्लूलेस। आज तक तुमने बस अपनी तारीफ सुनी है, पर वर्क एनवायरनमेंट में कोई स्कूल की तरह तारीफ नहीं करने वाला है। अगेन यू आर क्लूलेस। While exceptions are there, but अगर तुम टॉपर हो या फिर थे, तुम अपने स्कूल में सबकी सुनते थे और करते भी थे, which inherently makes you an entity governed by others. With no disrespect to teachers, they have given the field of education their whole life. So it's common sense, उनके लिए formal education ही सब कुछ है, because of 2 reasons, cognitive dissonance and investment in it. इसे ऐसे समझो, अगर तुम PUBG खेलते हो और तुमने रॉयल पास खरीदा है, तुम चाहकर भी PUBG को बेकार नहीं कह पाओगे क्योंकि तुमने उसमें अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए हैं। हाँ, एक्सेप्शंस यहाँ भी हैं, बट मोस्टली यही होता है। There are toppers who have done great in their life. It's not that कि you become a topper फिर तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, और ना ही I ever said कि तुम फेलियर हो तो तुम कुछ बड़ा ही करोगे। Here's the thing, I am not talking about topper as a person. By topper I mean a persona who is hardworking but is caught up in his own comfort zone. A persona which is high in risk aversion. A persona which is high in conformity. जिन टॉपर्स ने कुछ बड़ा किया है, they separated from their topper persona and took risks. बल्कि you know what? If you are a topper, you are already hardworking.
यू हैव द कैपेबिलिटी एंड अगर तुम पढ़ाई को कई घंटे कर सकते हो, ट्रस्ट मी, यू आर किलर। The simple point of the video is be topper plus failure. How? If you are a topper, तुम already dedicated हो, hard working हो. Only thing you need is explore and take risks. खोने को क्या है यार? And if you are not a topper और तुम ये वीडियो देखकर खुश हो रहे हो, listen to me. If you are getting bad marks और तुम्हारे पास पढ़ाई को छोड़कर करने को कुछ नहीं है, then एक बार दोबारा सोचो। सिर्फ एक काम था, पढ़ाई, और वो भी अच्छे से नहीं हुई। सॉरी दोस्त, कुछ तो गड़बड़ है। देयर इज ओनली वन केस वेयर एवरेज मार्क्स इज नॉट अ प्रॉब्लम। द केस इज जहां तुम कुछ और कर रहे हो। कुछ और से मेरा मतलब एंटरटेनमेंट नहीं, एडुकेशन है। द होल पॉइंट इज वर्क। यू हैव टू वर्क, स्कूल स्टडीज और एनीथिंग एल्स, बट वर्क। बट अगर तुम कुछ नहीं करते हो, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। टू सम अप द वीडियो, इफ यू आर अ टॉपर, टेक रिस्क्स। If you are not, work hard. Feel free to ask any questions or express your opinions, and then check out my other videos too.